Good morning everyone. I am Sharon. I welcome you all on the official channel of Erudition Studies. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਡੇਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ 7 AM ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਐਕਸਟਰਾ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋ, ਓਕੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਡੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਮੈਂਡਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਟ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜੋ ਓਲੰਪਿਕਸ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਬੱਚਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਓਲੰਪਿਕਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਹਾ ਆ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਓਕੇ। ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਅਗੇਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਕੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਦ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਐਥਲੀਟ ਟੂ ਵਿਨ ਗੋਲਡ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਓਲੰਪਿਕ। ਕੌਣ ਪਹਿਲੇ ਐਥਲੀਟ ਬਣੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਿਆ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਨ ਅਦਰ ਦੈਨ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੀਰਜ ਪਹਿਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਥਲੀਟ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ, ਓਕੇ। ਐਸੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲਡ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਨੀਰਜ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਭਾਰਤੀ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੀਰਜ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬਣਨਗੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਵਰਆਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਸਟ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀਜਿੰਗ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਆਲਰਾਈਟ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੀਰਜ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 87.58 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਭਾਲਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਥਲੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਟਨ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ ਇਟ ਲਾਈਵ। ਔਰ ਉਹ ਲਾਈਵ ਮੈਚ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਸਾਹ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮੈਚ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਔਰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੋਲਡ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਗੇ, ਓਕੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੀਸਰੇ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 87.58 ਮੀਟਰ ਦਾ ਭਾਲਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਜੋ ਵੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਫੀਲਡ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਰਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਲਰਾਈਟ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹ 7th ਮੈਡਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾ ਜ਼ੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੈਕਬ ਵਡਲੇਚ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਜੋ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਤਾਸਲੇ ਵੇਸਲੇ ਨੂੰ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜੋ ਮੈਡਲ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਜ਼ੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ, ਆਲਰਾਈਟ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੋਲਡ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਾ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ, 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ, ਓਕੇ।
जो दूसरी स्टोरी है वैसे मैं तुहानूं पहलां भी दस्सी हुई है और कल दी वीडियो दे विच भी दसूंगी। ओके, यानी कि पहले भारती किहड़े सी जिन्हां ने गेम्स दे विच पार्टिसिपेट कीता सी ओलंपिक्स दे विच, और इंडिया ने ऑफिशियली कदों पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, दोनों अलग अलग चीज़ां ने। ऑलराइट, तो जदों तो ऑफिशियली इन्होंने पार्टिसिपेट किया उस तो लैके हुण तक आपां कदी भी फील्ड इवेंट दे विच गोल्ड नहीं जित पाए। तो इस बारी दा जो ओलंपिक है हुण अपने भारत के इतिहास दे विच ना सुनहरी अखरां दे नाल लिखिया गया है। राइट, और ये बारे कल जो वीडियो आएगी वो तुहानूं सारी डिटेल दे विच डिस्कशन मिल जाएगी। ओके, हुण देखांगे आपां क्वेश्चन नंबर 2, हू हैज़ बिकम द 6th इंडियन रैसलर टू फिनिश ऑन ओलंपिक्स पोडियम। भारत के 6वें रैसलर कौन बने ने जिन्हां ने कि ओलंपिक दे विच मैडल हासिल किया है। तो इन्हां दा नाम है बजरंग पूनिया। ओके, इन्हां दा भी मैच कल ही खेलिया गया सीगा, नीरज दे मैच तो जस्ट पहला ही। तो जिहड़े इंडियन रैसलर है बजरंग पूनिया, इन्हां ने 65 kg दी जो रैसलिंग इवेंट है इहदे विच ब्रॉन्ज मैडल हासिल किया सीगा, और इन्हां ने ना कजाकिस्तान दे दौलत नियबेकोव इन्हां नूं हराया 8-0 दे नाल। तो तुसीं समझ सकते हो कितना शानदार इन्हां ने मैच खेडिया होगा। और इस तरह जो पूनिया है 6वें इंडियन रैसलर बन गए हैं जिन्होंने ने कि मैडल हासिल किया ओलंपिक्स के विच। तो फिर पहले वाले 5 कौन कौन है, एक तो हो जाएंगे केडी जाधव, देन सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, रवि कुमार दाहिया। ओके, और अगर आप गल करते हैं तो 2012 जो लंडन दे विच ओलंपिक्स होए सी ना, वो वाले इवेंट तो बाद दूसरी बारी है कि जदों सेम ही गेम यानी कि उस ही ओलंपिक्स दे विच ना 2 इंडियन रैसलर्स ने मैच जीते ने। ओके, तो इन्होंने मैडल हासिल किए ने। पहले है अपने रवि दाहिया, इन्होंने मिला से सिल्वर मैडल। राइट, और इस तो बाद दूसरे हुण बन गए बजरंग पूनिया जिन्होंने कि मिला ब्रॉन्ज मैडल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च्ड पानी महा इनिशिएटिव। हाल ही दे विच केड़ा राज है या फिर केड़ी यूटी है जिसने कि पानी महा नाम की पहल की शुरुआत की है। तो इसका आंसर रहेगा लद्दाख। ओके, तो देखो लद्दाख ने क्यों स्टार्ट की है, क्योंकि इत्थे दे जिन्ने भी पिंड है ना, पिंडां दे खेत्रां दे विच जो जल है उनके महत्व के बारे दे विच जानकारी देने वास्ते ही जो लद्दाख की गवर्नमेंट है उन्होंने पानी महा यानी कि वाटर मंथ, ठीक है, इसकी शुरुआत की है। और इस स्कीम के अंडर होएगा कि लद्दाख सरकार ने घोषणा की है कि जेड़ा भी डिस्ट्रिक्ट हर घर जल जो प्रोग्राम है ना उनके विच 100% अपनी अचीवमेंट दिखा देगा, उन्हां दे पहले ब्लॉक नूं मिलेगा 25 लाख रुपए का इनाम। ओके, और इसके नाल नाल ओ वाले पिंड जेड़े कि 100% टैप वाटर नूं पहुंचाणगे अपने पिंड दे सारे ही घरां दे विच, ऐदां दे पहले 5 पिंडां दी चोण की जाएगी। राइट, और उन्हां नूं दिता जाएगा 5 लाख रुपीज़ ईच विलेज। ओके, तो देखो इहदे विच ना इन्हां ने बोलिया कि टोटल 3 पैरामीटर्स होणगे जिन्हां दे उपर की काम किया जाएगा। फर्स्ट दे विच होएगा वाटर की जो क्वालिटी है ना उनकी टेस्टिंग की जाएगी कि वो कितना अच्छा है पानी। ओके, इस तो बाद पानी की आपूर्ति करने के लिए प्रॉपर प्लैनिंग की जाएगी, और पिंडां दे विच ना एक पानी सभा का भी निर्माण किया जाऊगा। ओके, और ये फिर सारा ही कामकाज देखणगे और सारा ही ध्यान केंद्रित करेंगे वाटर कंजरवेशन के उपर और वाटर की टैप सप्लाई के उपर। ओके, हुण अगर आप गवर्नमेंट के आंकड़े देखते हैं ना तो जो लद्दाख है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना ओनली 11.75% ही ग्रामीण परिवार है जिन्हां दे कोल की टैप वाटर दे कनैक्शन हैगे ने। ठीक है, तो तुसी समझ सकते हो कि इत्थे टैप वाटर के मामले दे विच काम करना कितना ज़्यादा जरूरी है। ऐसे करके ही इत्थे पानी माह की शुरुआत की गई है। और इस इनिशिएटिव के अंतर्गत ना इन्होंने बोलिया 2 चरण होणगे जिन्हां दे विच काम किया जाएगा। पहले चरण दे विच ना सारे ही सर्विस डिलीवरी पॉइंट्स जिहड़े होणगे इन्हां दे पानी की जांच की जाएगी, इस दे लई सैंपल्स नूं इकट्ठा किया जाएगा। ओके, और जदों सैंपल इकट्ठे हो जाएंगे फिर इन्हां नूं भेजा जाएगा लैब्स दे विच। ऑलराइट, और दूसरे चरण दे विच जो जल जीवन मिशन है इहदे तहत जो पानी की क्वालिटी है और जो सर्विस है डिलीवरी है इन्हां नूं इंप्रैसिव बनाया जाऊगा। ओके, तो तुसीं समझ गए होगे कि ये वाला सारा कुछ स्टार्ट किया गया है ताकि जो पानी है सारे ही पिंडां दे घरां दे विच पहुंचाया जा सके। ओके, हुण इत्थे आपां गल कर रहे सीगे जल जीवन मिशन दी, है ना, क्योंकि ये जो टैप वाटर वाली फैसिलिटी यानी कि पानी महा जो कि लद्दाख च शुरू किया गया ना, ये जल जीवन मिशन के अंडर ही स्टार्ट किया गया। ओके, तो इस वास्ते आपां देखांगे जो जल जीवन मिशन है ये की है,
ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ जो सेंटर गवर्नमेंट है इसके ਵੱਲੋਂ चलाया गया एक मिशन है। ਇਹਦੀ शुरुआत की गई सी 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना एक टारगेट रखा गया ਕਿਹੜੇ वाला कि 2024 तक पूरे इंडिया ਦੇ ना हरेक पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ हर घर ਦੇ ਵਿੱਚ पाइप ਦੇ ਨਾਲ पानी ਨੂੰ पहुँचाया जाएगा। ਤਾਂ ਇਹ जो टारगेट ईयर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ याद रखना है कि 2024 ਦਾ टारगेट रखा गया है हर घर जल मिशन ਦੇ ਵਿੱਚ। ओके, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ कि जो 100% ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ओके, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 100% ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੋਆ ਸਟੇਟ। ਓਕੇ, ਤੇ ਗੋਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ, then दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, आफ्टर दैट पुडुचेरी। इन्हां सारियां ने ही 100% अपने पेंडू खेतरां दे विच ना सारे ही घरां दे विच टैप वाटर दे नाल सप्लाई नूं पहुंचा भी दिता है। ओके, हुण गल करदे हां लद्दाख दे जो लैफ्टिनेंट गवर्नर ने, इन्हां दा नाम रहेगा राधा कृष्ण माथुर। और करंट दे नाल रिलेट करिए तां इत्थे ना आर्यन वैली जो कि इत्थे दे कारगिल डिस्ट्रिक्ट है ना उत्थे मिलेगी। ठीक है, ਇਹਨੂੰ कनैक्ट किया जा रहा है नैशनल ग्रिड ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, और ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ जो योजना है उसके अंडर ये काम हो रहा है, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਰੀਅਨ ਵੈਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਿਜਲਈਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। और इस दे नाल जो कार्बन न्यूट्रल बनने लई लद्दाख ने अपना एक टारगेट रखा हुआ है, इस दे विच हैल्प मिलेगी। ओके, और इत्थे दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना वो भी होएगी लद्दाख के रिमोट एरियाज दी। राइट, बिजली दे आउण दे नाल। आफ्टर दैट जो इंडिया और चाइना हैगे है इन्हां ने मल्टीपल राउंड किते है, बहुत ज़्यादा वार्तालाप दी। ठीक है, आपस दे विच इन्हां दी गलबात हो रही है, इन्हां दी मिलिटरी लैवल दी गलबात। ठीक है, किस लिए की जा रही है ताकि ना इन्होंने बोलिया कि जिन्ने भी साडे लद्दाख के एरिया दे विच स्पैशली जो ईस्टर्न लद्दाख वाला एरिया ना इत्थे जिन्ने भी इन्होंने अपने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, चाहे वो इंडिया दे हैगे है चाहे वो चाइना दे हैगे है, ये सारे दे सारे पॉइंट्स नूं हुणे रिमूव कर देंगे। ओके, और तुहानूं पता होना चाहिए है कि लगातार 14 महीने तक ना एक स्टैंड ऑफ रहा है इंडिया और चाइना का। और ऐसे ही स्टैंड ऑफ नूं खत्म करन दे लई ये वाले जो राउंड हैगे ना मल्टीपल राउंड चल रहे हैं मिलिटरी टॉक दे। ओके, और स्पैशली किहड़े एरिया दे लई चल रहे हैं ईस्टर्न लद्दाख दे लई। इस तो बाद इत्थे अप्रूव किया गया सेंट्रल यूनीवर्सिटी नूं बनाउण दे लई। ओके, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों ही अप्रूवल मिली है। ओके, आफ्टर दैट ये पहली इदां दी यूटी बनी जिसने कि 100% पहली डोज दे दी है अपनी सारी ही पॉपूलेशन नूं कोविड-19 दी। ऑल राइट, आफ्टर दैट इत्थे दी स्टेट ओन्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है CESL जिसकी फुल फॉर्म है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड। राइट, इन्हां ने एक पैक्ट साइन किया है लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन दे नाल ताकि जो लद्दाख है ना ये वाली यूटी नूं कार्बन न्यूट्रल बनाया जा सके, यानी कि इत्थे कार्बन के एमिशन नूं बिल्कुल खत्म किया जाना है। ओके, आफ्टर दैट इत्थे लिआंदी गई योन टैब स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत की किया गया 12,300 जो स्टूडेंट्स है ना इन्हों फ्री दे विच लद्दाख की गवर्नमेंट के वलों टैब प्रोवाइड किए गए ने, टैबलेट। ओके, इस तो बाद लद्दाख दे विच आया इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट, इनू चलाया गया अपनी इंडियन आर्मी वालों ताकि लद्दाख दे विच जिन्ने भी स्टूडेंट्स है सारिਆਂ ਨੂੰ ही एजुकेशन के फील्ड दे विच बहुत वधिया मौके प्रोवाइड किए जा सकन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इंडियाज फर्स्ट हार्ट फेलियर बायो बैंक स्टार्टेड। भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक जो है इसनूं कित्थे शुरू किया गया, तो ये स्टार्ट किया गया केरला दा विच। ठीक है, और ये ना अपने इंडिया का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक रहेगा जो कि केरला दे विच स्थापित किया जा रहा है। और इत्थे दी किहड़ी यूनीवर्सिटी हैगी है जिथे नूं बनाया जाएगा, तो ये हो जाएगी सटोमसट श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मैडिकल साइंसिस एंड टैक्नोलॉजी। ठीक है, और इत्थे ना स्पैशल एक इन्हां दा सब सेंटर है नैशनल सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड एक्सीलेंस। ठीक है, इत्थे इनकी शुरुआत की जा रही है, पर तुहानूं मेनली की याद रहना चाहिए कि जो पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक है केरला दे विच मिलेगा। ओके, इस तो बाद देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने भी हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स होंगे हैं उन्हों के जो जेनेटिक है ना या फिर उन्होंने जो मेटाबोलोमिक्स है इन्हों का अध्ययन किया जाना है। ठीक है, इस वास्ते इन्हू खोलिया गया
और बायो बैंक्स दे विच हुंदा की है, इन्हां हाई क्वालिटी दे बायोलॉजिकल ह्यूमन सैंपल नूं इकट्ठा करदे ने, ठीक है, और इन्हां सैंपल्स नूं ही फिर यूज़ किया जाता है कि बीमारी की जड़ का पता लगाया जा सके। ओके, और ये डायग्नोस करन दे लई और इलाज करन दे लई इस प्रक्रिया नूं इंप्रूव किया जा सकता है इन्हां सैंपल्स के थ्रू। ओके, और इहदे विच जो ब्लड हुंदा है या फिर टिशू हुंदा है या फिर सीरम हुंदा है, इहदे सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं कदों, जदों किसी भी पेशेंट की ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है। ओके, और ऐदा नहीं हैगा कि पेशेंट नूं पता ही नहीं हुंदा और उनके सैंपल ले ले जाते हैं, ऐदा नहीं हुंदा। पहला जो पेशेंट हुंदा है उनकी प्रॉपर कंसेंट लई जाती है, उस तो बाद ही फिर उनकी सर्जरी के दौरान उनके विचों सैंपल ले ले जाते हैं ताकि उनके उपर रिसर्च की जा सके और फिर जो बीमारी की जड़ का पता लगा के उनके विच इंप्रूवमेंट करने के लिए मेडिसिन वगैरह नूं डेवलप किया जा सके। ओके, केरला के कैपिटल थिरुवनंतपुरम गवर्नर आरिफ मुहम्मद खान CM रहनगे पिनाराई विजयन। और राइट, अगर आप करंट के नाल रिलेट करते हैं तो इत्थे कृषि करना प्रोजेक्ट नूं लॉन्च किया गया सीगा, ठीक है, ये किस लिए, ताकि जो एग्रीकल्चर है एंड जो हॉर्टिकल्चर है इन्हां दोनों नूं ही की किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके। ठीक है, तो मैं तुहानूं जदों लैक्चर लिया सीगा ना एग्रीकल्चर का, उदों मैं तुहानूं हॉर्टिकल्चर के बारे में काफ़ी अच्छी तरह दस्सिया सी। अगर तुसीं वो लैक्चर ध्यान नाल देखिया तो तुसीं कमेंट सैक्शन दे विच दसना कि हॉर्टिकल्चर का मतलब की हुंदा है। ओके, आफ्टर दैट इत्थे जो केरला गवर्नमेंट है इन्होंने एज लिमिट नूं रिमूव कर दिता है ट्रांसजेंडर्स की, यानी कि हुण किसी भी उम्र दे विच यूनीवर्सिटीज़ दे विच एडमिशन लै सकणगे। ये किस लिए किया गया, ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकन। ओके, और एडुकेशन नूं लैके और फिर आपदा अच्छी आजीविका नूं भी कमा सकन। राइट, और इत्थे आया एक अभियान जिसका नाम है क्रशिंग द कर्व। ठीक है, इन्हां वैक्सीनेशन दे लई एक प्रॉपर मास कैंपेन चलिया सीगा, किस लिए, ताकि सारी ही जो इत्थे दी जनता है उन्होंने कोविड की वैक्सीनेशन लगाई जा सके। और ये पहली इदां दी स्टेट बनी जो कि 100% डिजिटल हो गई सी पब्लिक एडुकेशन के फील्ड दे विच। इस तो बाद ये पहली इदां दी स्टेट बनी जिन्हां ने कि वैजिटेबल्स दे लई मिनिमम सपोर्ट प्राइस नूं फिक्स किया, और पहली ही स्टेट है जिसने कि CAA दे अगेंस्ट रेजोल्यूशन नूं पास किया। तो तुसी कमेंट सैक्शन दे विच CAA दी फुल फॉर्म दसनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट हैज़ अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट अर्थक्वेक मोबाइल ऐप। तो भारत की पहली भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण किस राज ने किया है। राइट, तो यह हो जाएगा उत्तराखंड। तो जो उत्तराखंड है इत्थे दे CM ने पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने ही इस मोबाइल ऐप के बारे दे विच गल की और इनू लॉन्च भी किया। ठीक है, और इनका नाम रखा गया उत्तराखंड भूकंप अलर्ट, ये इंग्लिश दे विच भी यही रहेगा। ओके, तो ये नाम की जो इंडिया की पहली ऐप नू लॉन्च किया, और इस ऐप दे विच होएगा कि जो उत्तराखंड की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना, उनके सहयोग के नाल इनू डेवलप किया जाएगा, पर इनू एग्जैक्ट डेवलप करेगा कौन, IIT रुड़की वालों इनू डेवलप किया जाना है। ओके, हुण देखो इहदे विच तुसीं ये भी याद रखना है कि शुरू दे विच ना इनू एज अ पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया सीगा, किहड़ी जगह ते, तो उत्तराखंड दे विच एक जगह है जिसका नाम है गढ़वाल खेतर। ठीक है, तो गढ़वाल वाले रीजन में इनू स्टार्ट किया गया। और इस ऐप की खासियत की है कि जदों भी भूकंप आंदा है ना, इहदी विच ना उहदे तो पहला ही बहुत पहला यानी कि भूकंप की जानकारी मिल जाएगी और इहदे विच आपां नूं चेतावनी भी मिल जाया करेगी। ठीक है, हुण जिद्दां ही अलर्ट मिलेगा तो जो प्रशासन है वो भी तो सतर्क हो जाएगा ना, तो इहदे नाल फिर जो जान माल का नुकसान है काफ़ी ज़्यादा घट किया जा सकेगा, जो कि इस टाइम भूकंप करके बहुत ज़्यादा हुंदा है। ओके, तो इत्थे देखांगे जो उत्तराखंड है इहदियां 2 कैपिटल्स ने, पहला इहदी विंटर कैपिटल हो जाएगी देहरादून। ठीक है, और इहदी समर कैपिटल केड़ी बनाई गई है, ग्यारसेन। ये दोनों तुसीं याद रखोगे। गवर्नर हो जाएंगे बेबी रानी मौर्य, CM है पुष्कर सिंह धामी। ओके, अगर आप हम करंट के नाल देखते हैं कुछ प्रोजेक्ट एंड स्कीम्स है जिहड़ियां कि अलग अलग स्टेट्स के वल्लों लॉन्च कीतियां गईयां, जिस तरह की जो राजस्थान गवर्नमेंट है इन्होंने लॉन्च किया मिशन निर्यातक बनो, केरला पुलिस ने लॉन्च किया पिंक प्रोटेक्शन। ठीक है, इनू किस लिए शुरू किया गया, तो विमेन की सेफ्टी के लिए। ये दोनों ही क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंटली कवर किए हुए हैं। राइट, अगर तुहानूं एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद है तो तुसीं कमेंट सैक्शन दे विच जरूर दसना। और कर्नाटका जो है पहली इदां दी स्टेट बनी जिसने कि ट्रांसजेंडर परसनस दे लई ना जो जॉब्स है उनदे विच रिजर्वेशन दिता सीगा। किन्ने % रिजर्वेशन दिता गया, प्लीज कमेंट इन द सैक्शन बिलो। ओके, आफ्टर दैट जो मध्य प्रदेश है इन्होंने लॉन्च की
दिवारण्य स्कीम, ठीक है। दिवारण्य स्कीम किस लिए लॉन्च की गई है, ताकि जो आयुर्वेद है इनू प्रमोट किया जा सके वर्ल्ड वाइड, ऑलराइट। और जो पुरी है ये इंडिया की पहली सिटी बनी जिसने कि बहुत ही साफ ते स्वच्छ ड्रिंकिंग वाटर जो है ना टैप दे राही अपनी पूरी सिटी दे विच प्रोवाइड कर दिता है 100%, ओके। और ये वाली जो फैसिलिटी है इत्थे 24 घंटे मिलेगी, ओके। आफ्टर दैट जो हरियाणा है इसने 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट नाम की स्कीम नू लॉन्च किया, ऑलराइट। कर्नाटका ने अनवील की बाइक टैक्सी स्कीम, ऑलराइट। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच सिटी बिकेम ओनली इंडियन सिटी टू बी सिलेक्टेड फॉर इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम। केड़ा शहर है जो कि अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चुनिया जाने वाला इंडिया का ना इको एक शहर बनया, ठीक है। पहला तो हो ही जाएगा बट इको एक ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंदौर, ओके। इंदौर की लोकेशन कित्थे मिलेगी आपानू, मध्य प्रदेश दे विच। तो जो मध्य प्रदेश की इंदौर सिटी है जो कि ना इंडिया की सब तो स्वच्छ सिटी भी है, ये भी आपानू पता है। एनू ही इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए चुनिया गया है और ये उपलब्धि हासिल करने वाला ये भारत का पहला शहर बनया, ओके। हुण ये जो शहर की हवा हैगी है ना एनू शुद्ध करने के लिए ये वाला प्रोग्राम टोटल 5 साल के लिए चलाया जाना है, जिसनों की इत्थे दी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैगी है ना उनके वालों चलाया जाएगा। इस दे नाल नाल जो MP दी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो भी इन्हां दी हेल्प करेगा, ओके। यानी कि दोनों मिलके ये वाला सारा काम करेंगे। हुण आपां देख लैणे कि इस प्रोग्राम के बारे दे विच स्पैशल की है, ओके। तो जिहड़ी क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम है USAID यानी कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इनके द्वारा इनू स्टार्ट किया गया, ओके। और इनके तहत इन्होंने की बोलिया कि जो एयर पोल्यूशन है इहदे नाल निपटन वास्ते ना एयर नू आपां प्योरीफाई करांगे और इस प्योरीफिकेशन के लिए ही इस संगठन नू बनाया गया और इनू वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड इन्वायरमेंटल डिफेंस फंड के द्वारा चलाया जा रहा है, ओके। तो तुसीं इहदे विच मेनली की याद रखना है कि ये वाले जो इंदौर है ना ये पहली इदां दी सिटी बनी है जिसनू कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत चुनिया गया, ओके। MP दी कैपिटल भोपाल, गवर्नर रहणगे मंगू भाई सी पटेल एंड CM हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान। अगर आप करंट दे नाल रिलेट करते हैं तो इत्थे मोसजे यानी कि समाजिक अधिकारिता शिविर इनका जो है इत्थे इस बारी इनोग्रेशन किया गया, यानी इस बारी इनू इत्थे ही मनाया गया सी MP दे विच, ठीक है। और ये वाला शिविर जो है क्यों मनाया जाता है, ताकि ना जिन्नियां भी दिव्यांगजन हैगे है इन्हां नूं की किया जाए अलग अलग डिवाइसिस दित्तियां जान जिसदे नाल कि ये अपने जो जीवन हैगा इनू नॉर्मल जी सकन, ठीक है। यानी कि जेड़े भी डिवाइस दे नाल इन्हां दी जो कमी है उसनू पूरा किया जा सकता है वो सारियां ही डिवाइसिस इन्हां नूं वंडियां गईयां। आफ्टर दैट MP दे ग्वालियर एंड ओरछा नाम दी जो 2 जगह आ इन्हां नूं यूनैस्को दी लैंडस्केप प्रोजैक्ट के लिए चुन लिया गया। हुण इन्हां दोनों ही थावां दे उपर यूनैस्को वालों डेवलपमेंट का काम किया जाएगा, ओके। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान ये भी आया सी मध्य प्रदेश दे विच ही। इस दे विच इन्हां ने बोलिया जो कोरोना है ना असीं इहदे नाल फाइट करांगे यूथ पावर कैंपेन दे नाल, ओके। इसे दा ही नाम रखा गया सी युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। आफ्टर दैट इत्थे वाटर दी कंजरवेशन दे लिए एक कैंपेन चलाया गया जिसका नाम है जलाभिषेकम कैंपेन, ओके। जो MP है इत्थे आया रिलीजियस फ्रीडम बिल 2020। एक इसलिए आया इहदे विच बोलिया गया कि अगर तुहानू कोई जबरदस्ती किसी धर्म नू कन्वर्ट करन दे लई मतलब कि तुहाडे ते जबरदस्ती करता है फोर्स करता है तो उन्होंने फाइन लगेगा 25,000 रुपीज़ का, ओके। इस दे नाल नाल उन्होंने 1 तो लैके 5 साल की जेल भी हो सकती है, राइट। एदा मतलब की है कि ये विच तुहानू पता होगा जो अपना आर्टिकल हैगे ने 25 तो लैके 28 तक अपने संविधान दे ये धर्म की स्वतंत्रता के बारे दे विच ही गल करते हैं, ओके। इहदे विच बोलिया गया है कि अपना जो देश है अपनी जो सरकार है इनका आपदा कोई भी धर्म नहीं होएगा, पर इत्थे दे जिन्ने भी नागरिक है अपनी मर्जी के नाल किसी भी धर्म नू अपना सकते हैं, राइट। तो ऐसे दे ही अंतर्गत 25 तो 28 वाले जो आर्टिकल है इन्हां दे नाल ही रिलेट करता होया रिलीजियस फ्रीडम बिल इत्थे पास किया गया ताकि किसी दी भी जो रिलीजन की फ्रीडम है ना उन्होंने खत्म ना किया जा सके, ओके। और इत्थे ही एक रोड मैप नू लॉन्च किया गया ताकि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश नू ये अचीव कर सकन, ओके। इस तो बाद इत्थे सब तो ज़्यादा टाइगर की पॉपूलेशन मिलती है
और मैं तुहानूं दस्सिया सी हर 4 साल बाद इंडिया दे विच टाइगर दा सेंसस किया जाता है, यानी कि इन्हां दी गिनती की जाती है, राइट। और लास्ट टाइम इनू कदों किया गया सी 2018 दे विच, उदों ही दस्सिया गया कि जो मध्य प्रदेश है ना, इत्थे टोटल 526 टाइगर्स है जो कि किसी भी स्टेट नालों ज़्यादा रहणगे। ओके, तो तुसी मैनू 2 क्वेश्चन दसने हैं, एक तो ये कि टाइगर्स डे जो है कदों मनाया जाता है, दूसरा एट प्रेजेंट अपने इंडिया दे विच जो प्रीवियस जो सेंसस होया ना 18 वाला, उसके अकॉर्डिंग अपने इत्थे किन्ने टाइगर्स हैगे ने, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन तुसी दसने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन मेंस हॉकी टीम क्लेंच्ड विच मेडल एट टोक्यो ओलंपिक्स। तो भारत की जो पुरुष हॉकी टीम है उन्हें टोक्यो ओलंपिक दे विच कोई मैडल हासिल किया है, तो यह किहड़ा मैडल है जो कि हॉकी टीम ने जितया, तो यह रहेगा ब्रोंज मैडल। ओके, तो जो इंडिया की मेंस हॉकी टीम है इन्हां दा मैच होया सी 5 अगस्त नूं, राइट। उदों ही इन्होंने टोक्यो ओलंपिक दे विच ब्रोंज मैडल जित के एक नवा इतिहास कायम कर दिता है। और इन्होंने हराया किनू, तो जर्मनी नूं हराया सी 5-4 दे नाल। ओके, और इस तरह जो अपनी इंडिया की टीम है अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये ब्रोंज मैडल भी अपने लिए गोल्ड तो वध के है, क्यों, क्योंकि 41 साल बाद अपनी जो इंडिया की हॉकी टीम है ना, उन्होंने इंडिया के लिए कोई भी मैडल जितया है ओलंपिक्स दे विच, राइट। लास्ट टाइम इंडिया ने 1980 दे विच जदों मॉस्को दे विच ओलंपिक्स होए सी उदों गोल्ड जितया सीगा। उस तो बाद अजे तक कोई भी मैडल हॉकी दे विच अपने खाते विच आया ही नहीं, ठीक है। ऐसे करके हुण जो पंजाब गवर्नमेंट है इन्हां ने टीम नूं प्रोत्साहित करने लई की बोलिया है कि जिन्ने भी इहदे विच इदां दे खिडारी होणगे जो कि पंजाब दे नाल रिलेट करदे ने, उन्हां नूं ईच खिडारी 1 करोड़ रुपीज़ का इनाम दिता जाना है, राइट। और जो हॉकी टीम है ना, इन्होंने ओडिशा की गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया हुआ है, इको एक स्टेट बनी है जिन्हों ने कि किसी भी नैशनल टीम नूं स्पॉन्सर किया होए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, तुसी याद रखना। तो इत्थे मेन इन्हों की मन्निया जा रहा है कि जो नवीन पटनायक है ना, इन्हों की स्पॉन्सरशिप करके ही जो हॉकी टीम है इन्ना अच्छा प्रदर्शन कर सकी। और राइट, हुण तक अगर आप गल करते हैं ना, तो पूरे इतिहास के विच इंडिया की हॉकी टीम ने टोटल 12 मैडल जीते ने, ठीक है। और इस तरह सब तो वध मैडल जितने वाली इंडियन हॉकी टीम बनी है। दूसरे नंबर के उपर जो सब तो वध मैडल जितने लिए नाम आता है ये जर्मनी का ही आता है, जिन्होंने इस बारी आप हराया। ओके, इत्थे मैं तुहानूं 2 स्लाइड्स दे विच ना सारी ही इन्फॉर्मेशन दी है 1928 तो लैके 2021 तक अपनी हॉकी दे विच किदां किदां दी परफॉर्मेंस रही है, ठीक है। कल वैसे मैं जो मास्टर वीडियो बनानी ना ओलंपिक्स उपर स्पैशल वीडियो, वो सारी डिस्कशन करूँगी। ओके, तो ये तुसी सारे दे सारे याद रख लेना, इत्थे तक खत्म होंदा है 2020 दे अपना जो ब्रॉन्ज मैडल है उत्थे तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन नेशनल हैंडलूम डे इज ऑब्जर्व्ड, राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कदों मनाया जाता है। तो देखो, नेशनल हैंडलूम डे हर साल 7 अगस्त नूं मनाया जाता है। इस दिन जो अपनी सेंटर गवर्नमेंट है ना और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये ना हैंडलूम वीविंग कम्यूनिटी नूं सन्मानित करती हैं, किस लिए, ताकि ना उन्हां द्वारा इंडिया दी सोशियो एंड इकोनॉमिक यानी कि समाजिक और आर्थिक डेवलपमेंट दे विच जिन्नी भी कॉन्ट्रीब्यूशन की गई है उहदे लई जनता नूं पब्लिक नूं अवेयर किया जा सके। ऑल राइट, और ये जो स्वदेशी मूवमेंट है ना उन्होंने कमैमोरेट करने के लिए ही हर साल मनाया जाता है। और इस साल ना 7वें नंबर का नैशनल हैंडलूम डे मनाया गया सीगा, राइट। और एहदे विच बोलिया गया है कि 3 ना हैंडलूम क्राफ्ट दे विलेज है ना उन्होंने भी एस्टैबलिश किया जाएगा। पहला बनेगा केरला दे विच, दूसरा श्रीनगर दे विच और तीसरा जो है ये बनेगा असम दे विच, राइट, क्राफ्ट विलेज। ओके, केड़े वाला क्राफ्ट, हैंडलूम क्राफ्ट। ओके, और इस दिन जो घोषणा हैगी है ना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों स्वदेशी मूवमेंट के जदों पूरे 100 साल होए सी उस मौके के उपर ही की गई सी, ठीक है, कि हुण इनू नैशनल हैंडलूम डे दे वजों मनाया जाएगा। ओके, अगर आप गल करते हैं जो स्वदेशी मूवमेंट है इनू कदों स्टार्ट किया गया सी 1905 दे विच, और इस दिन नू पहली बारी 2015 दे विच चेन्नई दे विच मनाया गया। ओके, और इत्थे ना फिर जो देश के लोग हैगे है उन्होंने इंडियन हैंडलूम की हिस्टरी के बारे में जागरूक करने के लिए इस डे की शुरुआत की गई सी। ओके, हुण इत्थे देखो मैं अज डे नहीं लिखे क्योंकि मैं तुहानूं काफ़ी बार सारे डे प्रोवाइड किए हैं, तो तुसीं लास्ट मंथ दे विच आपां जिन्ने भी इंपॉर्टेंट डे सैलीब्रेट किए हैं सारे दे सारे लिस्ट तुसीं कमेंट सैक्शन दे विच लिख देना, छाप देना। ओके,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9, ਨੇਮ ਦ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ ਗੋਲਫਰ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ 4th ਐਟ ਓਲੰਪਿਕਸ ਗੇਮ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੋਲਫ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਦਿਤੀ ਅਸ਼ੋਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਦਿਤੀ ਅਸ਼ੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਗੋਲਫ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਪ ਅਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਾਈਟ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਦਿਤੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਓਲੰਪਿਕ ਸੀਗਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਵੀ ਖੇਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ, 41st ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 4th ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲੌਂਗ ਹਾਈ ਜੰਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਕਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਲਾਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਓਕੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜੋ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਇਆ ਨਾ ਉਸ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਰਡੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਰਡੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟਰਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੋਲਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਲੀ ਜੋ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਪ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰੰਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟਸ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ 41 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਜਦੋਂ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਸੀ, 23 ਜੁਲਾਈ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਫਲੈਗ ਬੇਅਰਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸੀ, MC ਮੈਰੀ ਕੋਮ ਐਂਡ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੈਪਟਨ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੰਟਿੰਜੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਦੇ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਬੇਸਬਾਲ ਐਂਡ ਸੌਫਟਬਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਰੀਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਔਰ 4 ਨਿਊ ਗੇਮਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਰਾਟੇ, ਸਰਫਿੰਗ, ਸਕੇਟਬੋਰਡਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਕਲਾਈਮਿੰਗ। ਓਕੇ, ਜੋ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਹ ਫਲੈਗ ਬੇਅਰਰ ਬਣਨਗੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ MC ਮੈਰੀ ਕੋਮ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ। ਓਕੇ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, where the world's highest motorable road has been constructed। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਹੀਕਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਲੱਦਾਖ। ਓਕੇ, ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ BRO ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। BRO ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮੋਟਰੇਬਲ ਰੋਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ, ਈਸਟਰਨ ਲੱਦਾਖ ਵੱਲ। ਓਕੇ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦर्रा ਹੈ ਉਮਲਿੰਗਲਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਉਚਾਈ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 19,300 ਫੀਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ 52 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ BRO ਤਾਂ BRO ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦ ਬੋਰਡਰ ਰੋਡਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਡਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ BRO ਵੱਲੋਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, 7 ਮਈ 1960 ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਚੌਧਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
और किहड़ी मिनिस्ट्री दे अंडर BRO काम करती है, तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये तुसीं याद रखना, रोड ट्रांसपोर्ट वाली मिनिस्ट्री नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करते हैं। ओके, अगर आप करंट के नाल रिलेट करिए कुछ डिफेंस के क्वेश्चनस नूं, तो पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट INS विक्रांत इन्हें हाल ही दे विच अपना पहला सी ट्रायल कंडक्ट किया। लोक सभा ने एक बिल पास किया जिसका नाम है इसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल 2021। इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इनू किस लिए बनाया गया? इन्होंने बोला कि जी गवर्नमेंट की ऑर्डनेंस फैक्ट्री है, ये जिन्ने भी वर्कर काम करते हैं ना, वो स्ट्राइक के उपर नहीं जा सकते। ओके, इस तो बाद वाइस एडमिरल SN गवर्नमेंट ये नवे वाइस चीफ बने नेवल स्टाफ के, और 12वां एडिशन इंदिरा नेवी एक्सरसाइज का करवाया गया। किहड़ी जगह ते? बाल्टिक सी दे विच। और इंडियन नेवी जो है इन्हें एक एक्सरसाइज दे विच पार्टिसिपेट किया, नाम है कटलेस एक्सप्रैस। ओके, और ये करवाई गई सी ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका दे विच। कारगिल दिवस मनाया गया कदों? 26 जुलाई नूं, और इस बार इहदी 22वीं एनिवर्सरी सीगी। ओके, दैन DRDO जो है इन्होंने टेस्ट की एक नवी जनरेशन की मिसाइल जिसका नाम है आकाश मिसाइल। ओके, तो इनका पूरा नाम जो है यह है आकाश NG, और इन्हें सरफेस टू एयर मिसाइल रहेगी। ओके, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50,000 करोड़ रुपीज़ जो है इशू किए ताकि 6 सबमरीन यानी कि पनडुब्बियां इन्हां दा निर्माण किया जा सके पूरी तरह इंडिजीनियसली, यानी कि पूरी तरह इंडिया दे विच ही इनकी प्रोडक्शन की जाएगी। और किहड़े प्रोजैक्ट के अंडर इन्हू स्टार्ट किया गया? 75 आई यानी कि इंडिया, ठीक है, 75 इंडिया के अंडर। ऑल राइट, तो स्टूडेंट्स ये सीगे अज दे सारे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप कि तुहानू ये सैशन हैल्पफुल लग रहे होंगे। अगर तुहानू अच्छे लग रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करो। ओके, बाय बाय।